So we are discussing about the regulation of cardiac output. ठीक है? 4 factors are there as we know: preload, afterload, contractility and heart rate. ये 4 फैक्टर हैं जो कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करते हैं. इनसे ही रेगुलेट होता है. इफ यू वांट एनी चेंज in the cardiac output, then one of these factors needs to be modified depending upon the situation. The first factor was preload. Preload का हम मतलब समझते हैं that when the ventricle starts contracting just before the systole, what is the volume in them, that we call the end diastolic volume. So ultimately end diastolic volume determines the preload on the heart. And that end diastolic volume also determines the stretch over the ventricle before it starts contracting. It means preload is dependent upon the Starling's mechanism. It is dependent upon Starling's mechanism. As the end diastolic volume increases, stretching will increase within physiological limits. The stroke volume will increase. Even if the heart rate is constant, there will be an increase in the cardiac output. Okay. And then what determines the end diastolic volume? It is the amount of blood returning to the heart per minute duration. That factor or that measure is known as the venous return. Blood कितना return हो रहा है वो determine करेगा कि end diastolic volume कितना होना चाहिए, stress कितनी होनी चाहिए. और जो relationship हमने ग्राफ में देखी थी end diastolic volume और stroke volume की, वो ऑपरेट करती है Starling's mechanism में. So these are the factors which are determining the end diastolic volume. That is, if the venous return increases, end diastolic volume will increase, and by the mechanism of the Starling's operation, there will be increase in the stroke volume. If some of the factors we already discussed, blood volume is major factor. Okay, respiratory pump we have discussed, the effect of the respiration on the venous return. पता है ना? इंस्पिरेशन में क्या होगा? venous return बढ़ेगा या घटेगा? During inspiration, what will happen to the venous return? What will happen to the venous return? Increase होगा, because when you take inspiration, intrathoracic pressure becomes more negative. It has gotten a suction effect. suck करता है negativity की वजह से, और central thoracic cavity में periphery से ज्यादा blood आता है, तो venous return बढ़ाता है वो. मगर immediately उसी बीट के दौरान, उसी सांस के दौरान आउटपुट लेफ्ट वेंट्रिकल का नहीं बढ़ता, आउटपुट राइट वेंट्रिकल का बढ़ता है. तो venous return राइट वेंट्रिकल में आ रहा है पहले, और थोड़ी देर बाद में पल्मोनरी सर्कुलेशन से जाने के बाद में लेफ्ट साइड में आएगा, और फिर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से. तो इट विल टेक सम टाइम फॉर द इक्विलिब्रियम टू रीच. देन मसल पंप, मसल का जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, यू नो द मसल वेन्स are present within the muscles also. They are compressed when the muscle contracts, and compression causes movement of the blood toward the central system thoracic cage, because in the lower part of the body where most blood is located, the veins are provided with the one-sided valve system. एक साइडेड valve system होता है लोअर साइड में बॉडी में, तो ब्लड को वापस नहीं जाने देता है, सिर्फ एक की तरफ बढ़ता है, वो हार्ट की तरफ जाता है. ठीक है, so that is muscle pump. Then venous pressure, anything which increases the venous pressure will always cause increase in the venous return. Venomotor tone is dependent upon the sympathetic drive. Veins, just like the arterioles, are provided with the smooth muscle. हालांकि उतना ज्यादा smooth muscle veins में नहीं होता, फिर भी अच्छा खासा होता है. Veins are highly compliant. बहुत ज्यादा उनका वॉल्यूम में बदलाव आ सकता है, डायमीटर में बदलाव आ सकता है. इसलिए अगर जरा सा भी वेनोमोटर टोन बढ़ता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, तो that causes translocation of large amount of the blood from the dependent part to the heart itself. So that is the venomotor tone depend upon the sympathetic supply. Then peripheral resistance, ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे. Resistance to the flow of the blood depends upon various factors, but any factor which decreases the peripheral resistance, कोई भी फैक्टर अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस को घटाता है तो पेरिफेरी में ब्लड का फ्लो बढ़ता है,
और जब भी ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ज्यादा रिटर्न भी होगा। तो any factor which causes decrease in the peripheral resistance will always cause increase in the venous return, बढ़ेगा। और जो भी peripheral resistance बढ़ाता है, जैसे कि sympathetic effect होता है, vasoconstriction करता है, तो वो venous return को घटा देगा। तो ये एक मिक्स टाइप की फिनोमिना है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से वेनोमोटर टोन बढ़ता है, वीनस कंस्ट्रिक्शन बढ़ता है, ब्लड ज्यादा जाता है एक तरफ। अगर आर्टीरियल साइड में इसका इफेक्ट उल्टा है, वहाँ पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने से पेरिफेरल में ब्लड फ्लो कम होता है, तो रिटर्न भी कम होगा। देन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट्स इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग मेरी उम्र के कंप्लेंट करते हैं कि जब हम लेटे से या बैठे से उठते तो चक्कर आने लग जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर गिर जाता है। इसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। पोस्चर चेंज करने से जो ब्लड प्रेशर में गिरावट आ रही है वो कहलाते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बिकॉज द ब्लड टेंड्स टू पूल इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। आदमी लेटा हुआ था, अचानक खड़ा होता तो ये ब्लड जो है नीचे पूल करने की कोशिश करता है, होता है ग्रेविटी की वजह से, और उसकी वजह से वीनस रिटर्न घट जाता है। वीनस रिटर्न घटने से क्या होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम घटेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, घटेगा, सेरेब्रल इस्कीमिया हो जाएगा, और उसकी वजह से चक्कर आने लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। सो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज देयर। एंड लास्टली कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट खुद अपने आप को रेगुलेट कर रहा है कि जितना बाहर निकलेगा उतना ही वापस भी आएगा और उतना ही फिर वापस बाहर निकलेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द venous return, determine the end diastolic volume, determine the preload, and ultimately regulate the cardiac output. The second factor regulating the cardiac output is the afterload. पहला था preload जिसका हमने डिस्कशन किया है, दूसरा है afterload. Afterload means the load or force against which the heart has to pump the blood. तो दो तरह का afterload हो गया। For the right ventricle, the afterload means pulmonary vascular resistance और pulmonary pressure. पल्मोनरी आर्टरी में कितना प्रेशर है वो डिटरमिन करेगा कि राइट वेंट्रिकल को कितना फोर्स जनरेट करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट में ब्लड को निकालने के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल का आफ्टरलोड कहाँ होगा, आर्टीरियल सिस्टम के अंदर, एओर्टा के अंदर ब्लड प्रेशर, जिसको सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर और एओर्टिक प्रेशर मेनली is the afterload for the left ventricle, while the pulmonary artery pressure is the afterload for the right ventricle. Okay, so that is the afterload. It means that when the ventricle starts contracting, जब systole शुरू होता है तो aortic valve खुलता है, तो खुलते ही कितना प्रेशर को एक्सपोज होगा वेंट्रिकल, वो डिटरमिन करेगा कि वेंट्रिकल से कितना ब्लड इजेक्ट होगा। If the afterload is increased, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपके वेंट्रिकल को ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करके ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा उतना ही ब्लड इजेक्ट करने के लिए। इट मीन्स दैट सडन इंक्रीज इन द आफ्टरलोड और ब्लड प्रेशर विल कॉज डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। आफ्टर अ स्टेडी स्टेट द लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली एंड विल बी एबल टू इजेक्ट द सेम इजेक्शन फ्रैक्शन एंड टू सप्लाई द nutrients or the blood to the whole of the body. But immediately increase in the afterload, that is increase in the systemic blood pressure or increase in the pulmonary blood pressure, will cause a decrease in the stroke volume output and decrease in the cardiac output will be there. So any factor which causes vasoconstriction, most important is stress, sympathetic stimulation. ये जब भी होता है vasoconstriction होता है। vasoconstriction का मतलब ब्लड वेसल का डायमीटर घट जाता है, उसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। So vasoconstriction will always increase after load and will cause increase in the work of the heart or immediately will cause decrease in the stroke volume. Stroke volume घटेगा, मगर इसका after effect बहुत लंबे समय तक चलता है। So if the after load remains increased over a long period of time, किसी का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा ही रहता है महीनों तक, वर्षों तक, तो क्या होगा? To maintain the stroke volume, ventricle has to generate consistent force rapidly, regularly over a long period of time. It means muscle will get hypertrophy. Left ventricle muscle will get hypertrophy. ज्यादा मसल मास बनाना पड़ेगा उसको आफ्टर लोड को काउंटरैक्ट करने के लिए, अगर उतना ही ब्लड इजेक्ट करना है तो। So anything which increases the afterload will cause increase in the work
done by the left ventricle will cause left ventricular hypertrophy on the left side, right ventricular hypertrophy on the right side. Okay, that is vasoconstriction. Similarly, decreased peripheral resistance is vasodilatation. So any factor which causes vasodilatation will cause more flow of the blood to the periphery. ज्यादा blood flow होगा तो ज्यादा return करेगा और ज्यादा output होगा आपका. So any factor which decreases the peripheral resistance will cause increase in the cardiac output, stroke volume and cardiac output. क्या क्या चीजें कर सकती है peripheral resistance को, क्या घटा सकता है? एनीमिया. एनीमिया में peripheral resistance घटता है क्या? What is why anemia affects the peripheral resistance? कहाँ? हाँ बोलो, क्या इसका मतलब लॉगरिथम एल्गोरिदम क्या हो सकता है इसका कि एनीमिया से जो है आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है? हाँ कम हो गई बिल्कुल. तो वो तो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया. मैकेनिज्म क्या है इसका? When the anemia is there, you said decrease in the oxygen carrying capacity. It means the tissues are relatively hypoxic. Smooth muscles of the blood vessels need oxygen supply for the consistent contraction. वो मेंटेन रखना पड़ता है उनको टोन, उस टोन को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, और अगर ऑक्सीजन पूरी नहीं मिले तो स्मूथ मसल्स पूरी फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, वो रिलैक्स कर जाती हैं और उसकी वजह से आपका परफेक्ट रेजिस्टेंस घटता है. उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है. और भी कारण है एनीमिया के अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ने के, मगर हम जिस लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं उसका कारण ये है कि मसल जो स्मूथ मसल विद ब्लड वेसल्स दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर नॉर्मल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन, स्लाइटली रिलैक्स दे आर, दैट कॉजेस डिक्रीज इन द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड विल कॉज इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो एंड द कार्डियक आउटपुट विल बी देयर. सेम थिंग इज इन द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में देयर इज large amount of the circulation is added in parallel rather than in series. और जब भी कोई रेजिस्टेंस आप पैरेलल में ऐड करते हैं, पता है आपको, तो टोटल रेजिस्टेंस को अपनी वैल्यू से कम कर देता है वो. एनी रेजिस्टेंस एडेड इन पैरेलल विल डिक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस इटसेल्फ बाय इट्स ओन वैल्यू. सो इन द प्रेगनेंसी पैरेलल सर्कुलेशन ऐड होता है, फीटल सर्कुलेशन. उसमें सीरीज में वेसल्स कम ऐड होती हैं, पैरेलल में ज्यादा ऐड होती हैं, तो पैरेलल रेजिस्टेंस घटता है और उसकी वजह से आपके कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है. एक्सरसाइज में कोई फिनोमिना है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं एक्सरसाइज के अंदर, एंड ऑल दिस दे कॉजेस इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट. आर्टीरियोवेनस फिस्टुला, आर्टीरियोल, प्री कैपिलरीज, मेटा आर्टीरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स आर देयर. These vessels are in series. Okay. If these series vessels are bypassed by arteriovenous fistula, then lot of resistance is decreased. ये जो vessels resistance provide कर रही थी वो हट गई बीच में से, arteriovenous fistula बन गया, वो आपका total peripheral resistance घटा देगा और cardiac output बढ़ा देगा. Hyperthyroidism you know is a hypermetabolic state. Increased demand of the oxygen is there, that results into the peripheral vasodilatation because of the requirement, and that results into the decreased peripheral resistance and increase in the cardiac output. This is the graph showing the effect of the afterload on the stroke volume. ये उसी तरह का कर्व जो हमने कार्लिंग्स मैकेनिज्म में देखा था. ये आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम कर्व है. Increase in the end diastolic volume is there, okay, that is the operation of the Starling mechanism. But at the same time, there is an increase in the peripheral resistance. Peripheral vascular resistance is increasing, and systolic peripheral vascular resistance is increasing. And what is the effect? You see, कि अगर यहाँ से चलें तो ये कर्व आया इस पे और ये आपका ये पहला वाला आ गया. सेकंड में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गया, आपका ये प्रेशर भी बढ़ रहा है, systolic pressure is rising, there is a increase in the end systolic volume. एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो इतना सारा था वो अब बढ़ के इतना सारा हो गया. इसका मतलब इजेक्शन घट गया. इस प्रेशर को बढ़ाने से इजेक्शन घट गया, वॉल्यूम घट गया, स्ट्रोक वॉल्यूम घट गया. सिमिलरली और ऊपर चलें
तो ये आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इतना हो गया और ज्यादा बढ़ गया. इट मीन्स एज द systolic pressure is rising, as the afterload is rising, there is a gradual decrease in the stroke volume output and end systolic volume is gradually decreasing. ये सारा end systolic volume है जो घटता चला जा रहा है. It means rise in the afterload, rise in the blood pressure will always result into decrease in the cardiac output, stroke volume and cardiac output. The third factor, ये दूसरा फैक्टर था जो कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करता है. थर्ड वन इज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी. दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डियक मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एंड दिस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टू मैकेनिज्म्स. वन इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर देयर and others are the internal factor within the heart. Factors are there which will cause change in the contractility of the myocardium. Contractility simply means force of contraction of the heart. ठीक है, and हम देख चुके हैं कि this force of contraction can be modified by two mechanisms. Either by operation of the Starling's mechanism, वो force of contraction बढ़ाता है मगर वो contractility को change नहीं करता. दूसरा है force of contraction बढ़ाना by changing the contractility of the myocardium itself. So two mechanisms are there by which the force of contraction of the heart can be regulated. So extrinsic regulation is neural. Neural में हम already देख चुके हैं that if the sympathetics are stimulated, there is an increase in the myocardial contractility and there is an ejection increase in the ejection fraction. Ejection fraction का percentage भी बढ़ जाता है, ठीक है, और end systolic volume बहुत ज्यादा घट जाता है. Stroke volume भी बढ़ेगा, ejection fraction भी बढ़ेगा और आपका end systolic volume घट जाएगा. Parasympathetic or the vagal stimulation will always cause decrease in the stroke volume output and cardiac output will decrease or contractility will decrease. So parasympathetic causes decrease in the contractility while the sympathetic causes increase in the contractility. ये बाहर के फोर्सेज हैं. इसके अलावा बाहर के फोर्सेज जो आपके केमिकल फैक्टर्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी. एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, डोपामीन also influences the contractility and they will increase the contractility and cause increase in the cardiac output. The second mechanism of influencing the contractility is by intrinsic mechanism. Intrinsic to the heart itself. बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये अंदर वाले फैक्टर्स ही रेगुलेट करेंगे, बढ़ा सकते हैं उसको. So three mechanisms are there which falls into the intrinsic regulation of the myocardial contractility. One is the homeometric autoregulation, second is the rate-induced autoregulation, and third is the temperature-induced autoregulation. Starling's mechanism is heterometric autoregulation. वो भी है, autoregulation ही आती है, मगर that is heterometric. There is a change in the length, then it is heterometry. The change is not there in the heart muscle length and force of contraction increases, then it is homeometric autoregulation. So just imagine a condition when there is a sudden increase in the blood pressure. There is a sudden increase in the blood pressure. एक हमने देखा था कार्डियक साइकिल में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, लेंथ मसल की चेंज नहीं होती. There is a tremendous increase in the intraventricular pressure, causes opening of the valve and blood gets ejected. ये सारा क्यों हो रहा था? Just to create a pressure which is greater than the aortic pressure. That was the purpose of this whole thing. यहाँ क्या होगा जब हम इसकी बात करते हैं homeometric autoregulation. Suppose there is a sudden rise in the blood pressure. Ventricle starts contracting. Contraction has started, but that contraction is not sufficient enough to open up the valve. It means for a very brief duration, when the blood pressure increases, the ventricle will contract isometrically for very brief duration of time to increase the pressure steeply so that it overcomes the aortic pressure which has been raised. तो aortic pressure या blood pressure अगर suddenly बढ़ा दिया जाए तो ventricle बहुत थोड़े duration के लिए isometrically contract करेंगे, length में change नहीं आएगी, ज़्यादा intraventricular pressure generate होगा and that will be able to overcome the systolic pressure in the aorta and then the ejection will start only. So that is the example of the homeometric autoregulation. Without change in the length, there is an increase in the force of contraction, that is the change in the contractility of the myocardium. The second is the rate-induced regulation.
अब हमने देखा था रेट में, हार्ट रेट का इफेक्ट अभी हम देखेंगे। जब भी हार्ट रेट बढ़ती है कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, सिंपल रिलेशनशिप है, ठीक है। और हम यहाँ इसको कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करता है, ऐसा कैसे? द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट व्हेन द हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड, one effect will be, we will just see. The other effect is that when the heart rate increases too much, then with each cardiac cycle we know, with each wave of depolarization, certain amount of the calcium enters into the myocardium from outside, as well as release from the intracellular sources. Sarcoplasmic reticulum से release हो रहा है, and at the end of systole, this whole calcium is getting again either pumped out or taken up by the sarcoplasmic reticulum. तो सारा वापस बैलेंस हो जाता है। मगर अगर हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ती है तो इस कैल्शियम के सीक्वेस्ट्रेशन में उतना समय नहीं मिलता। इसका मतलब अगर रेट बढ़ती है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कैल्शियम बढ़ता चला जाता है हार्ट के अंदर, मसल के अंदर। एंड वी नो दैट द कैल्शियम इज द प्राइम फैक्टर फॉर रेगुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम। तो रेट बढ़ने से चूंकि समय घट जाता है तो पूरा कैल्शियम जो अंदर आया था वो पूरा बाहर नहीं जा पाता, कैल्शियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ती चली जाती है और उसकी वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है और आपके कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। तीसरा इफेक्ट है टेम्परेचर का। ये भी इसी तरह, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो ज्यादा कैल्शियम रिलीज होता है हार्ट के अंदर, और ज्यादा कैल्शियम रिलीज होता है तो ज्यादा देर तक सस्टेन करता है वहां पे और आपके कॉन्ट्रैक्टिलिटी को चेंज करता है। तो ऑल दी थ्री मैकेनिज्म्स आर इन दी होम्योमेट्रिक intrinsic regulation of the myocardial contractility. The fourth factor regulating the cardiac output is the heart rate. हार्ट रेट के बारे में हम पहले ही बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, क्या क्या फैक्टर रेगुलेट करते हैं। देयर आर न्यूरल रेगुलेशन एंड देयर आर रिफ्लेक्स रेगुलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सेज आ रहे हैं, वो सारी रिफ्लेक्सेज हम देख चुके हैं। कौन कौन सी रिफ्लेक्सेज है, कोई नाम बता सकता है एक दो के? एनी रिफ्लेक्स रेगुलेटिंग द हार्ट रेट है कोई नाम? एनी नेम फॉर द reflexes arising from the atria, from the ventricles, coronary chemoreflex, vein bridge reflex, baroreceptor reflexes, reflexes from the ventricular stretch receptors, all these are regulating the heart rate. baroreceptor बोल दिया बेटा, baroreceptor reflexes are इसकी और डिटेल में बात करेंगे। This is the diagram for the heart rate relationship with the cardiac output. तो ये तो इधर तो हार्ट रेट है नीचे की तरफ तो, और ऊपर की तरफ कार्डियक आउटपुट है। ये बात, ये मैंने हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, ठीक है। क्या शो कर रहा है ये? दैट इफ द हार्ट रेट इंक्रीजेस देन देयर इज एन इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट कंसिस्टेंटली, बट दिस रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर। रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर, पहली बात। And after some time, after a certain stage, the effect of heart rate disappears. The cardiac output plateaus off, and if it goes further, it may start decreasing. Why? Because as the heart rate rises, initially more and more blood is coming, more and more rate is there, stroke volume into heart rate, cardiac output goes on increasing. But if the heart rate goes above 180 beats per minute, more than that, then you know that in the cardiac cycle the maximum duration which gets affected or decreased, क्योंकि जब हार्ट रेट बढ़ती है तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन घट जाता है, ठीक है ना, सारे पीरियड घट जाते हैं। सिस्टोल भी है वेंट्रिकल का, डायस्टोल भी है वेंट्रिकल का, और डायस्टोल के वेंट्रिकल में सबसे बड़ा लंबा पीरियड कौन सा होता है? डायस्टेसिस का होता है, स्लो फिलिंग फेज ऑफ द वेंट्रिकल। सो दैट पार्ट, दैट टाइम गेट्स एनक्रोच्ड अपॉन or decreases mostly when the heart rate is increasing. तो डायस्टेसिस में सबसे ज्यादा घटाव आता है तो हार्ट रेट बढ़ती है। तो इसका मतलब अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ती है तो डायस्टोल के दौरान हार्ट को भरने का टाइम ही नहीं मिलेगा। नॉट मच टाइम विल बी अवेलेबल फॉर फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल, और जब वेंट्रिकल की फिलिंग कम होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। तो हार्ट रेट आप एक तरफ बढ़ा रहे हैं और स्ट्रोक वॉल्यूम आप घटा रहे हैं तो हार्ट रेट आपका कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ सकता। सो दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ द हार्ट रेट एंड द कार्डियक आउटपुट।
अगर ज्यादा बढ़ती है हार्ट रेट तो कार्डियक आउटपुट घटना शुरू हो जाएगा, उतना नहीं बढ़ेगा। Then certain ions are there which can affect the activity of the heart. Potassium always has got a depressing effect. पोटेशियम के इफेक्ट बहुत तरह से आते हैं। अगर हाइपर कैलीमिया कर दें, हाइपर कैलीमिया का मतलब पोटेशियम बढ़ा दें ब्लड के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो क्या होगा? If the extracellular potassium is increased, what will happen to the activity of the heart? Any idea? Because potassium is the most dangerous ion to affect the cardiac activity. It is regulated within a very small range. इसका रेंज बहुत कम है, 3.5 to maximum 5.5, ज्यादातर तो 5 ही मान के चलते हैं। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द पोटेशियम कंसंट्रेशन। 4.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द नॉर्मल पोटेशियम कंसंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर इसको 6 कर दें, 7 कर दें तो क्या होगा? बहुतों के हो जाता है, क्या होगा? बोलो हैं? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? वो तो होगा। हम यहाँ हार्ट रेट की बात ही नहीं करेंगे पोटेशियम के साथ। तो हमें हार्ट रेट की जब डिस्कस की तो पोटेशियम का जिक्र ही नहीं आया था, पता है ना? नहीं आया था। नहीं, 4.5 से 5.5 या 6 होने में ऑस्मोलैरिटी में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता बच्चे। मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। We know that the potassium is the major ion which affects the RMP and ultimately excitability of the any excitable tissue. अगर आपका RMP कार्डियक मसल में -90 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है, और इसमें आप पोटेशियम अगर बाहर बढ़ा देंगे, पोटेशियम हैज गॉट अ नॉर्मल टेंडेंसी टू गो आउट। अंदर पोटेशियम ज्यादा है, 150 155 के आसपास होता है, बाहर पोटेशियम कम है, 4.5 मिलीग्राम के आसपास होता है, तो पोटेशियम हैज गॉट अ टेंडेंसी टू गो आउट। आप पोटेशियम बाहर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? पोटेशियम बाहर, अंदर से बाहर ज्यादा नहीं जा पाएगा, पोटेशियम अंदर स्टे करेगा। इसका मतलब कार्डियक मसल विल स्लाइटली डीपोलराइज बिफोर द एक्चुअल डीपोलराइजेशन बिगिंस। That will decrease the contractility, that will decrease the magnitude of the action potential developed, and that will decrease the contractility of the myocardium. कैल्शियम अंदर कम जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पोटेशियम बढ़ता है तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन को वीक करता हुआ चला जाएगा, और अगर पोटेशियम 8 पे पहुंच जाए तो देयर इज अ बिजार कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, अल्टीमेटली द वेंट्रिकल में फेल, ऐसे नोड विल स्टॉप जनरेटिंग द इंपल्स। तो ये तो पोटेशियम का इफेक्ट है एक तरह, ठीक है। और अगर पोटेशियम घटा दिया जाए तो क्या होगा? 4.5 से हम 3 पे ले आए पोटेशियम तो कार्डियोलॉजिस्ट बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है, मरीज पेशेंट इज इन हाई डेंजरस कंडीशन। पोटेशियम कम होना भी उतना ही खतरनाक है जितना बढ़ना है, इसलिए पोटेशियम को रेगुलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो पोटेशियम घटा दें तो क्या होगा? उसी पर लगाओ, आरएमपी पे ही चले जाओ, वहीं जवाब मिलता है इसका सारे का। आपका पोटेशियम बाहर कम हो गया, इसका मतलब पोटेशियम अब बाहर ज्यादा जा सकता है। नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर द पोटेशियम इज -94, नॉर्मल -90 है। -90 से अगर 93 94 पहुंच गया, मेम्ब्रेन गेट स्टेबलाइज्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डीपोलराइज। सी मेम्ब्रेन जिसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के पास पहुंच रहा है पोटेशियम के -94 तक, तो उस मेम्ब्रेन को आप डीपोलराइज कर ही नहीं सकते। मेम्ब्रेन पोटेंशियल गेट स्टेबलाइज्ड एट द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर द पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम अगर घटता है तो वो भी उतना ही डेंजरस है जितना ही पोटेशियम का बढ़ना है। So both factors, change in the potassium will affect the myocardial contractility and decrease it. So potassium ultimately decreases the cardiac output. मोटी बात ये। फिर आता है कैल्शियम के ऊपर, तो कैल्शियम का इफेक्ट हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। कैल्शियम has got a positive inotropic effect, causes increase in the myocardial contractility, will increase the stroke volume and the cardiac output.
हाइड्रोजन आयन हैज गॉट अ डिप्रेसिंग इफेक्ट, ये निगेटिव इफेक्ट करेगा। एसिडिटी जब भी होती है, एनी फैक्टर कॉजिंग एसिडिटी और डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द ब्लड, नॉर्मल पीएच कितनी होती है ब्लड की? 7.4। रेंज क्या है नॉर्मल? बिल्कुल ठीक। तो 7.4 अगर पीएच है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है उस वक्त? खतरनाक सवाल है। मेरे को तो मिलीमोल्स में नापते हैं बेटा, हम इसमें करवाते हैं लैब से, तो ये इसमें 10.27 लिखी हुई नहीं आती रिपोर्ट। व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एट पीएच 7.4 एंड एट पीएच 7.35, जो वीनस ब्लड की होती है, ठीक है ना? वीनस ब्लड इज स्लाइटली एसिडिक। 40 nanomoles per liter at 7.4 pH, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 40 nanomoles per liter, और 7.35 पे 5 बढ़ा दो, 45 nanomoles per liter. So hydrogen ion has got a negative effect upon the contraction of the myocardial muscle. Further, if the hydrogen ion concentration increased, then it has got a negative effect on the effect of catecholamines. हार्ट के ऊपर जो कैटेकोलामाइंस का पॉजिटिव इफेक्ट आता है, उसको भी एसिडिटी घटा देती है, उसको भी एसिडिटी घटा देती है, इसलिए मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी घट जाती है। तो एसिडिटी और हाइड्रोजन आयन कॉजेज डिक्रीज इन द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड विल कॉज डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। तो देयर आर टू टर्म्स देन, हार्ट या तो अच्छा काम करेगा या कम काम करेगा। तो देयर कैन बी ए हाइपर इफेक्टिव हार्ट और इट कैन बी ए हाइपो इफेक्टिव हार्ट। अगर हार्ट का कार्डियक आउटपुट ज्यादा है तो हाइपर इफेक्टिव है, और अगर कम है नॉर्मल से तो वो हाइपो इफेक्टिव हार्ट। सो दीज आर द कंडीशंस व्हिच रिजल्ट इनटू द हाइपर इफेक्टिव हार्ट, मतलब कार्डियक आउटपुट इज मोर देन नॉर्मल, नॉट मोर देन रिक्वायर्ड। दोनों अलग अलग चीजें, मोर देन नॉर्मल एंड मोर देन रिक्वायर्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। कार्डियक आउटपुट मोर देन रिक्वायर्ड कभी नहीं होता, वो उसी लेवल पे रेगुलेट होता है जितना रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, मगर जो नॉर्मल की रेंज देते हैं उससे बढ़ जाता है, इतना ही फर्क है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन विल ऑलवेज कॉज हार्ट टू बी मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल, ज्यादा आउटपुट करेगा। वेगल इनिबिशन से भी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, वेगस का इफेक्ट आप कम कर रहे हैं। हाइपरट्रोफी अगर होती है तो वो उसको इंक्रीज करने के लिए ही होती है, बेसिकली आउटपुट बढ़ाने के लिए। कैटेकोलामाइंस अगेन दे कॉजेज इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हाइपर एक्टिव हो जाता है। एंड कैल्शियम इन्फ्यूजन, ऑल दीज फैक्टर्स कॉजेज इंक्रीज इन द इफेक्टिवनेस of the myocardial contraction and cardiac output increases. Hypoeffective heart कब हो सकता है? After myocardial infarction, अगर myocardial ischemia हुआ, coronary arteries ब्लॉक हो गई, तो एक पर्टिकुलर पोर्शन हार्ट की मसल का डेड हो गया, वो डेड टिश्यू काम नहीं करता, वो फोर्स भी जनरेट नहीं करता, तो उतना इफेक्टिव आउटपुट नहीं हो पाता। तो myocardial infarction will always reduce the effectiveness of the myocardial contraction, cardiac output will decrease. Vagal stimulation again same thing, parasympathetic को जब भी स्टिमुलेट करेंगे cardiac output घट जाएगा। Valvular heart disease, aortic stenosis, aortic regurgitation, both increases the effectiveness of the cardiac pumping. Hypertension as you know afterload बढ़ाता है, तो हार्ट की इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। Congenital heart disease बहुत सारी होती हैं, उनमें ज्यादातर में जो है cardiac output कम हो जाता है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, बैक्टीरियल भी हो सकता है, ऑटो इम्यून भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बहुत सारे कारण है मायोकार्डाइटिस के, और उन सब से जो है हार्ट की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। कार्डियक हाइपोक्सिया एज इन कंडीशन फॉर द शॉक, वो हम आगे पढ़ेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है। और एसिडोसिस लास्ट में आ गया हुई, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल कॉज ऑलवेज डिक्रीज इन द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन एंड आउटपुट विल डिक्रीज। ये कुल मिला के कार्डियक आउटपुट के बारे में था। अब हम हार्ट को छोड़ देते हैं,
वैस्कुलर सिस्टम पे आ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट की हमने ज्यादातर बात कर ली, अब वैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे और फिर दोनों को मिक्स करके बात करेंगे, तब जाके सीरियस पूरा होगा। तो हमने बात की कार्डियक आउटपुट की, वीनस रिटर्न की, हार्ट रेट की, कार्डियक साइकिल की। सवाल है कि ये सब हो किसके लिए रहा है, फॉर व्हाट, फॉर whom इट इज बीइंग डन। अल्टीमेटली एंड यूजर कौन है? एंड यूजर आपके टिश्यूज हैं। तो ब्लड फ्लो, जो हार्ट से ब्लड निकल रहा है, इज कंट्रोल्ड नॉट बाय हार्ट इटसेल्फ और बाय द सेंटर देमसेल्फ, बट द टिश्यूज विच रिक्वायर द ऑक्सीजन एंड द ब्लड। जो ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो टिश्यूज को चाहिए। तो एक्चुअल रेगुलेशन कौन कर रहा है? टिश्यूज कर रहे हैं। टिश्यूज अपने ब्लड को खुद रेगुलेट करते हैं कि मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना चाहिए, ये टिश्यूज का रेगुलेशन। So rate of blood flow in the body is controlled by the local tissue need for the oxygen and the nutrients. Now, cardiac output is controlled by mainly by the sum of all local tissue blood flow. तो हमने कार्डियक आउटपुट की बात कर ली, इतने सारे फैक्टर्स गिना दिए, डिस्कशन कर लिया, मगर अल्टीमेटली क्या निकला कि टिश्यूज की डिमांड कितनी है, उसके हिसाब से हार्ट को सप्लाई करनी पड़ेगी। तो कार्डियक आउटपुट इज मेनली डिटरमिन्ड बाय द इंडिविजुअल टिश्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो वहां की जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करेंगे। द थर्ड फैक्टर जो कार्डियक आउटपुट में आता है, जिसकी हम बात करें, आफ्टरलोड। ब्लड प्रेशर इज अनदर बिगर पैरामीटर इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इज कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द ब्लड फ्लो। ये ब्लड फ्लो अलग चीज है, इसके फैक्टर्स अलग हैं, कार्डियक आउटपुट के फैक्टर्स अलग है, और ब्लड प्रेशर के फैक्टर्स अलग हैं। वी सी व्हेन वी डिस्कस द शॉक, जब हम शॉक की बात करेंगे, शॉक क्या होता है, हम शॉक की बात करेंगे। मैंने कहा शॉक का क्या मतलब है? फ्लूइड लॉस, बीपी कम होना, यही मैं बताना चाहता हूं। बिकॉज क्लिनिकली what we monitor for the patient is the blood pressure. But we'll see later on that if we plot a graph of the amount of the hypovolemia created, आपने 10% ब्लड निकाल लिया, 20% एनिमल्स में कर सकते हैं, 20 निकाल लिया, 30 निकाल लिया, और ब्लड प्रेशर पर कार्डियक आउटपुट इफेक्ट देखा इनके घटाने का, तो पता लगा कि ब्लड प्रेशर तो वेल मेंटेन्ड है, घटा क्या है ज्यादा? कार्डियक आउटपुट। So cardiac output mechanism regulating are different. They are not very efficient as compared to the mechanism which are regulating the blood pressure. So blood pressure regulating mechanisms are different. They are more effective than those mechanisms which regulate the cardiac output. So both are independently regulated, but to some extent overlap is always there, mind it. So this is the main feature of the flow. सर्कुलेशन हम देख चुके हैं, दो तरह का बताते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन इज ए हाई प्रेशर एरिया एंड इट इज बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो को अगर रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट होगा। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन इज अ हाई प्रेशर एरिया सर्कुलेशन, व्हाइल द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज अ लो प्रेशर एरिया। पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रेशर कम होता है रिलेटिवली। कम क्यों होता है? तो रेजिस्टेंस कम होता है वहां पे। रेजिस्टेंस कम क्यों होता है? दो कारण है। वेसल्स आर शॉर्टर, बहुत छोटी है, पल्मोनरी आर्टरी छोटी है, एओर्टा बहुत बड़ा है। स्मॉल, शॉर्टर, वाइडर, चौड़ी ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगी, एंड लेस मसल्स आर देयर। तो वेसल्स के वाल के अंदर स्मूथ मसल्स कम है, तो उसकी नैरोइंग ज्यादा नहीं कर सकता वो। वेसल्स छोटी भी है और वाइडर भी है। तो तीन जो पैरामीटर हैं जो अलग हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन से, दैट इज द रिजल्ट और दैट रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ रिलेटिवली लो प्रेशर इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये प्रेशर प्रोफाइल है सर्कुलेशन में। प्रेशर प्रोफाइल ऊपर वाला सिस्टमिक सर्कुलेशन का है और नीचे वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन का है। यू कैन से प्रेशर्स आर हायर। Upper pressure is known as the systolic pressure, lower pressure is known as the diastolic pressure. So pressure has got a fluctuating profile.
it fluctuates between the higher level and the lower level. Fluctuations are there. Okay. And another thing, that in the large arteries, the pressure is relatively same. It does not change much. But as the artery starts narrowing, there is a decrease in the pressure. This is the area we call as the arterioles. You can say the tremendous drop of pressure is there across the arterioles. आर्टीरियोल के आर्टरी एंड के ऊपर, आर्टीरियोल के वीनस एंड के ऊपर, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क क्रिएट हो गया, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन वेयर द फ्लो इज बीइंग और अदर द रेजिस्टेंस इज बीइंग ऑफर्ड मैक्सिमम. इस एरिया में फ्लो को मैक्सिमम रेजिस्टेंस एनकाउंटर करना पड़ता है, उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप सबसे ज्यादा यहाँ होता है आर्टीरियो की. दैट्स व्हाई वी कॉल आर्टीरियोल्स एज अ सीट ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ये सीट है पेरिफेरल रेजिस्टेंस की आर्टीरियोल. मैक्सिमम ड्रॉप इज देयर. द सेकंड थिंग इज, ये यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम ठीक नहीं है. इन कैपिलरीज द फ्लक्चुएशन जो आपका आ रहा है प्रेशर का, प्रैक्टिकली डिसअपियर हो जाता है, both in the systemic circulation and pulmonary circulation. The fluctuations of the systole and diastole gradually disappear because of the gradual increase in the peripheral resistance. जो fluctuation are at end. Pulmonary circulation, same phenomena is there, but the pressures are relatively lower. That's all. So that is the pressure profile in the circulation. This shows the effect or role of the elastic arteries, mainly aorta. You see, blood is ejected from the left ventricle into the systemic circulation. It is getting ejected during the systole only. Nothing comes out of the ventricle during the diastole. So ejection of the blood is intermittent phenomena. It is intermittent. लगातार नहीं हो रहा. सिस्टोल के दौरान ब्लड बाहर आ रहा है, डायस्टोल के दौरान नहीं आ रहा. जीरो फ्लो इज देयर. बट इन द आर्टीरियल सिस्टम ऐसा नहीं है. डायस्टोल के दौरान देखोगे तो ब्लड वेसल्स खाली मिलेंगी, खाली नहीं होती. दे आर ऑलवेज फुल. इट मीन्स द ब्लड विच इज गेटिंग इजेक्टेड into the aorta, that is elastic arteries. The arteries expand because of the elasticity and accommodate that amount of the blood. So it means that flow or volume of the blood, that energy now is stored as a potential energy. The vessels widen हुई, stretch हुई elastic arteries, तो उसने potential energy को store कर लिया. And when no ejection is there, that potential energy causes get converted into the kinetic energy of the flow. वो उस flow में convert करता है. तो ब्लड पहले इकट्ठा हुआ, निकला भी, आगे भी गया, वहां इकट्ठा हुआ. जो डायस्टोल में ब्लड नहीं आ रहा था, तो जो ब्लड इकट्ठा हुआ वो आगे बढ़ता चला जाता है. सो द एओर्टा और द लार्ज इलास्टिक आर्टरीज आर capable of converting intermittent ejection of the blood into a continuous flow into the vascular system. This phenomena is known as Wind-Castle effect. This is known as Wind-Castle effect, and the arteries so creating that effect is known as the Wind-Castle arteries. So large elastic arteries are known as the Wind-Castle arteries, and the effect is known as Wind-Castle effect. अब इसका आगे फॉलो आउट देखिए, जो नीचे वाला डायग्राम. द आर्टरीज एज द एज एडवांसेस एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है. आर्टरियल वॉल गेट्स हार्डन्ड, थिक हो जाती हैं, वो उतना फैल नहीं पाती, इलास्टिसिटी का लॉस हो जाता है. एंड द रिजल्ट इज दैट ड्यूरिंग डायस्टॉल द फ्लो डिक्रीजेस. ड्यूरिंग डायस्टॉल देयर इज अ डिक्रीज इन द फ्लो. बहुत कम फ्लो रह जाता है, और कई बार तो स्टॉप भी हो सकता है, बिकॉज जो ब्लड निकलना था एक साथ ही निकलेगा. वो डायस्टॉल के दौरान स्टोर हुआ ही नहीं ब्लड ज्यादा वहां पे, इसलिए फ्लो कम हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज और लॉस ऑफ elasticity of the arteries, there is a decrease in the diastolic flow into the vascular system. ये हम बाद में देखेंगे. This is something about the hemodynamics. We'll discuss later.